Morning students, how are you all? I hope you all are fine. We are going to do our lesson, the interview of class 12 by Christopher Sylvester. We have already done its first part and we are doing second part. If you have not done the first part, then you can see it from the description box because I have given its link there. Yesterday we had started we had done that one question was asked by Mukund ने क्वेश्चन पूछा था. What was that his way of writing the stories and other things was very different from others. Then was it natural or he had adopted it? Okay, कि मतलब जो उसका लिखने का जो वे है, एकेडमिक स्टाइल जो है वो बाकी सभी से बिल्कुल अलग है. वो नेचुरली है या उसने जानबूझ के अडॉप्ट किया है. तो उसी का आंसर जो है अम्बर्टो इको दे रहे हैं. तो लिटिल बिट वी हैव रेड, तो उसी का आगे हम कंटिन्यू करेंगे. एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरी बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन. तो उसने क्या बताया दैट एट द एज ऑफ 22 ईयर्स ओल्ड के थे जब वो, दैट एट दैट टाइम ही कम टू नो दैट स्कॉलरी बुक्स जो होती हैं, ठीक है, जो स्कॉलर्स होते हैं, ग्रेट पर्सन, उनकी जो बुक्स होती हैं वो इसी वे में लिखी जाती हैं एज ही इज़ राइटिंग. कैसे? बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च. दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट. रिसर्च की स्टोरी बताने के कारण ही उसके जितने भी एसेज हैं वो एक नरेटिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उसमें वो अपने रिसर्च के बारे में बताता है. एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस. इसीलिए नॉवल उसने बहुत लेट शुरू करने किए थे, क्योंकि उसके एसेज वगैरह खुद ही नरेटिव एस्पेक्ट होता था. तो इसीलिए उसको इतना कभी फील ही नहीं हुआ कि उसको नॉवेल्स लिखने हैं. बट ऑन द अदर हैंड हिज फ्रेंड वॉज देयर, रोलांड बार्थेस, हु वॉज एन एसेइस्ट. ठीक है, देखो ऐसे तो वो भी लिख रहा था, इको भी लिख रहे थे और रोलांड भी. But he was happy. Umberto Eco, he was not happy. Roland Barthes was not happy because he wanted to be a novelist. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. ठीक है, क्योंकि वो नरेटिव राइटिंग करना चाहता था बट वो नहीं कर पा रहा था, so he was very sad. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do one day, and so I started. Novels probably satisfied my taste for narration. Because देखो रोलांड के जो बार्थेज हैं उसकी क्या प्रॉब्लम थी, that his essay was not in the form of narration, but he wanted to write novels. ठीक है, कभी उसने लिखा नहीं, but he always saying that I wanted to write. And Umberto Eco was there. He was satisfied by what he was writing. जैसे वो लिख रहा उसमें satisfied था. So novels suddenly he started writing, and his taste, or you can say his desire for narration was also fulfilled by writing the novels. Okay, so write one question. What did Roland Barthes want to do? Was he successful? Why? Clear? You can see here so that it could be clear to you. Let's move further. Mukund, talking about novels, from being a famous academic you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. Means what he says कि आप पहले एकेडमिक में बहुत ज़्यादा फेमस थे, यानी कि जैसे उन्होंने नरेटिव्स लिखे, ऐसे लिखे, आर्टिकल्स लिखे. ठीक है, तो उसने कहा कि आप बहुत फेमस थे. एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू गॉट टू मच फेमस बाय पब्लिशिंग one novel that was the name of the रोज़. बिकॉज 20 उसने कहा कि आपने बाकी के नॉन फिक्शंस वगैरह लिखे हैं, लेकिन नॉवेल्स सिर्फ कितने लिखे हैं? 15. Umberto Eco said
आई हैव नॉट रिटन 20 ओवर 40 कि मैंने 20 नॉन फिक्शन नहीं बल्कि 40 नॉन फिक्शंस लिखे हैं. मुकुंद, ओवर 40, among them a seminal piece of work on semiotics. हमने पीछे पढ़ा था कि semiotics क्या है, language of science. But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is a novelist. Does that bother you? Okay, so what he said कि आपने नोवेल तो सिर्फ 5 लिखे हैं, ठीक है, और बाकी के जो वर्क हैं जैसे नॉन फिक्शनल वर्क्स वगैरह वो बहुत सारे हैं 40 के करीब. बट देन ऑल्सो अगर हम लोगों से बात करते हैं एट दैट टाइम दे वर सेइंग दैट ही इज़ अ नॉवलिस्ट. क्या ये बात आपको बॉदर करती है? बॉदर मीन्स परेशान करना. ओके, बॉदर मीन्स परेशान करना. Umberto Eco, yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. So Umberto Eco says, yes, this thing bother me. मुझे परेशान करती है because I consider myself university professor. वो अपने आप, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, he is a professor and he writes novels on Sundays. It's not a joke. I participate in academic conferences and not meeting of pen clubs or the राइटर्स. मतलब कि एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस लाइक वर्कशॉप्स जो होती हैं टीचर्स वगैरह की, प्रोफेसर्स वगैरह की, दैट इज़ एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस. बट ही डज़ नॉट लाइक टू अटेंड द पेन क्लब्स और राइटर्स मीट, यानी कि जैसे कवि सम्मेलन होते हैं उसको बोलते हैं हम, ठीक है. आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी. सो मैं पसंद करता हूँ कि लोग मुझे एकेडमिक कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करें, ठीक है. द राइट वन मोर क्वेश्चन है, why does Umberto Eco consider himself a professor? Okay, but okay, if they have read only the novels. I know that by writing novels I reach a large audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff of semiotics. मतलब क्या है कि नोवेल के कारण मुझे बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिली है, लेकिन उतनी बढ़िया मीन्स ऑडियंस जो है, रीडर्स जो हैं, वो सेमेटिक से नहीं मिलने वाले थे. सो दैट इज़ अमंग द पीपल. ये लोगों की सोच है दैट दे हैव रेड माई नॉवेल्स ओनली एंड दे लाइक माई नॉवेल्स. नेक्स्ट, मुकुंद्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ द रोज़ इज़ अ सीरियस नॉवल. इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न. ये एक डिटेक्टिव सीरियल है at one level, but it also delves into the metaphysics. इसके अलावा ये मेटाफिज़िक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री इससे भी बिलोंग करता है. Now see, metaphysics means related to spirituality, आध्यात्मिक. थियोलॉजी means study of religion एंड मेडिवल हिस्ट्री मीन्स मध्यकाल की हिस्ट्री, ठीक है, मिडल पीरियड या मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री. तो ये से दैट एक तरफ तो ये डिटेक्टिव यान है, ऊपर से इन चीज़ों को भी हमने पीछे पढ़ा था, बिकॉज इज ऑल द प्लेज, ऑल द स्टोरीज आर ऑफ वन फिलोसफी और यू कैन से मोरालिटी. तो यही चीज़ है कि शास्त्र धर्म, ठीक है, धर्म के बारे में बताता है, रिलीजन के बारे में, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में. सो येट इट एन्जॉय एंड ह्यूज मास ऑडियंस. वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस. क्या आपको इससे ये बात पजल करती हैं, यानी इस बात से कुछ आपको पजल होता है कि इसके बावजूद भी आपको इतने ऑडियंस जो हैं मिले हैं नॉवल के. Umberto Eco, no, journalists are puzzled and sometimes publishers. And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. Trash means rubbish, यानी रद्दी सी चीज़ें, मीन्स विच आर नॉट इंटरेस्टिंग वेरी मच. तो वट ही सेज कि जो जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स होते हैं उनको ऐसे लगता है कि जो लोग हैं वो इस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं करते. उनको जैसे सिंपल रोमांटिक हो गई या सिंपल कोई एक स्टफ़ की स्टोरी पसंद आती हैं, और उनको डिफ़िकल्ट रीडिंग पसंद नहीं आती, यानी इजी रीडिंग पसंद करते हैं लोग. ये किनका मानना है? जर्नलिस्ट का. कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट. द नेम ऑफ रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 million copies. So in a way I reached only a small
percentage of readers, but it is exactly these kinds of readers who don't want easy experience. इसका मतलब क्या है कि he wants to say कि देखो जितने 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ जो हैं बिकी हैं, तो ये क्या है कि बहुत ही कम लोग हैं, बट इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट इतने लोग तो हैं जिनको इजी एक्सपीरियंस पसंद नहीं है. इट मीन्स उनको थोड़ा सा कुछ सीरियस या कुछ डिटेक्टिव टाइप चीज़ें पसंद हैं. तो हर तरीके के लोग मीन्स यहाँ पे इस दुनिया में हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा है उम्बर्टो इको. और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वॉन्ट दिस. आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर watch television and want to see either Miami Vice and Emergency Room. These are the name of the series or serials. I enjoy it and I need it, but not all day. ठीक है. तो मतलब क्या है कि लोग पसंद करते हैं. ठीक है. हर तरीके के लोग होते हैं कि कोई किस तरीके का पसंद करता है तो किस तरीके का पसंद करता है. So write 1 or 2 questions here. One is, what did Eco tell about likes and dislikes of people related to novel? Next question, write down. What does Umberto Eco do at night after his dinner? Mukund, could the huge success of the novels have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? तो उसने क्या कहा कि क्या इसके आपका जो प्ले है इसके सक्सेस होने का कोई जो रिलेशन है ये मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताता है क्या? इस चीज़ के इससे भी कोई रिलेशन है? दैट्स पॉसिबल, हो सकता है. ठीक है. But let me tell you another story, because I often tell stories like Chinese wise man. My American publisher said while she loved my book, she did not expect to sell more than 3,000 copies in the country where nobody had seen a cathedral or studies Latin. Cathedral means church. ठीक है. So what happened that the publisher जिसने ये publish किए थे उसका novel, तो American publisher was there. उसको उसकी बुक्स तो पसंद आई, बट शी सेड दैट कि मुझे लगता है कि ये 3,000 से ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बिकेंगी. सो आई वॉज गिवन एन एडवांस ऑफ 3,000 कॉपीज़, इसलिए उसने मुझे सिर्फ 3,000 कॉपीज़ का ही एडवांस दिया. बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द US. लेकिन US में इसी बुक की 2 और 3 मिलियन के करीब बुक्स बिकी. ओके. इट मीन्स कि हम कुछ भी नहीं बता सकते कि कब कोई चीज़ फेमस हो जाए और कब कोई चीज़ फेमस ना हो. अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फॉर बिफोर माइंड. आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री. ठीक है. कि पहले भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, मेरे से पहले और मेरे के बाद भी बहुत सारी लिखी जाएंगी. ठीक है. सो बुक कब सक्सेसफुल होगी तो ये एक मिस्ट्री है कि कब के मतलब कि कौन से लोग पसंद करेंगे, कब लोग पसंद करेंगे, कैसे लोग पसंद करेंगे, ये सब कुछ एक मिस्ट्री है. नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट. प्रिडिक्ट का मतलब है पहले से किसी के बारे में पता करना. ठीक है. एज्यूम करना या भविष्यवाणी करना. आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुडंट हैव बीन द सेम. हो सकता है कि मैंने ये जो अगर 10 साल पहले लिखी होती या 10 साल बाद में लिखता then it could not have been so much successful. हो सकता है उस टाइम ना सक्सेसफुल होती. why it worked at that time is a mystery. तो यही एक mystery है. so write one question. what was the last question of Mukund? how did Eco reply him? that's all in this lesson. I hope you understood this lesson. Bye students.